Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today our topic is new one and last in your syllabus. As it is known to you that we have already completed the syllabus of fourth semester. In that we have completed the 3 units. That is, one is how to change globalism. Another is what is another? I have a dream. And another is the dog that bit the people. We have completed them. Also we have completed the interview and we have completed the presentation. Now today is the last topic, that is telephone communication, isn't it? First of all, telephone, you are familiar with this, you are aware with this, that what is meant by telephone? That is mobile. In other words, we can say mobile or telephone. They are one and the same. Mobile is that which we can take with us, which is mobile, which we can take with us. Otherwise, they are same have the same features, telephone or mobile. But we have not to define here what is mobile, what is phone. We have to define in our syllabus. There is telephone communication. Telephone. I have already told you that communication, in case of communication means where we express our views, we express our thoughts, we express our ideas, we express our emotions, we express our feelings. समझ आ रहा है? Either orally or by writing, है ना? We can express our or through gestures. For example, यानी कि आपने खाया, सोया, हाँ? यानी कि we can use these things for communication. I already told you that in case of communication, the speaker says something, but that whatever he says, whatever he is communicating, that is a code. And the listener audience, they decode that code if they are familiar with that code. अगर इनको मालूम है कि ये कोड किसके लिए हम यूज करते हैं, अगर वो उस लैंग्वेज के कोड जानते हैं तब वो इनको डिकोड कर सकेंगे. And then there is a change: speak, listen, receive. This is communication, but in our syllabus there is telephone communication. Telephone is known to you, I already told you. Now, in the examination, once again I say that the first question may be definition of telephone communication. What do you mean by telephone communication? How you will define telephone communication? Definition. आपको हर किसी को मालूम है, जब हम आपस में बातें करेंगे फोन पर, उससे टेलीफोन कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना? अब हमें इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए टेलीफोन कम्युनिकेशन इज एन ओरल कम्युनिकेशन. सीधी सी बात है, ये वर्बल मत हम तो इसमें लिखते ही मत हैं, ओरल जबान से हम करते हैं, स्पीकिंग राइटिंग में नहीं. ओरल कम्युनिकेशन किन के, इसका आपको मालूम है इसमें कितने पर्सन होते हैं? 2. ये तो हर किसी को मालूम है, समझ रहे हैं? In this type of communication, like other means of communication, जैसे कि बाकी communication है, मतलब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं. हम जैसे मैंने इंटरव्यू कहा है, ये बंद रखो प्लीज, गेट बंद, समझ आ रहा है? 2 persons, क्या होता है? In this type of communication, like other means of communication, कितने persons होते हैं? क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. क्या जो मैंने अभी कहा है, थॉट्स, बहुत आसान है. व्यूज, अपने आपके ख्यालात क्या होंगे, आपके थॉट्स क्या होंगे आपके, और आइडियाज, आपका आइडिया क्या होगा, या आपके इमोशंस भी आप एक्सचेंज करते हो, फीलिंग्स भी विद ईच अदर आपस में. टेलीफोन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन. यानी कि आजकल तो एसेंशियल बन गया है, जरूरी बन गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई मैंने आपको, हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है, आजकल लोग बहुत दूर होते हैं. चलो छोड़ो ये बात, हम अपने मुल्क में हैं, अपनी स्टेट में हैं, अपने गांव में हैं, जो दूसरे मुल्क में हैं, हम उसको जब चिट्ठी भेजेंगे वो 10 दिन, 1 हफ्ते में या 15 दिन में वहाँ पहुँचेंगी. आज हम लाइव देखते हैं, है ना, लाइव कॉल करते हैं. ये किससे पॉसिबल है? टेलीफोन कम्युनिकेशन से. इसीलिए जो टेलीफोन कम्युनिकेशन ये एसेंशियल है आजकल, है ना, एसेंशियल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिसाल के लिए वो क्वेश्चन वहां होगा, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेशन. इसमें ये लिखना है. टेलीफोन यूज इज वन ऑफ द मोस्ट
not unusual methods by which to materialize both internal and outside communication. यानी कि इसमें हम internally यानी कि अपने स्टेट में भी इसको हम यूज करते हैं, अपने मुल्क में भी यूज करते हैं, आउटसाइड भी यूज, जो मैंने आपको पीछे पहले भी कहा है. हाँ, टेलीफोन यूज इज वन ऑफ द मोस्ट, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस. हाँ हाँ, ये याद रखना है. ज्यादातर जब फोन आया था एक्चुअली ये बिजनेसमैन के लिए था. समझ आ रहा है? क्योंकि बिजनेस में हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, ट्रेड करना होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है. मगर आपको मालूम है हम हर किसी चीज का मिसयूज करते हैं. कहते हैं ना, नथिंग इज गुड और बैड बट यूज मेक्स इट सो. नॉट वी कैन से थिंकिंग यूज. हम क्या करते हैं, हमने क्या किया इस फोन का, आप भी इसी साइड आओ, इसी साइड आओ, क्योंकि आप एक ही साइड, आप तो आज काम है. हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यूज जब हम करते हैं, हमने क्या किया है, हमने उसका भी मिसयूज किया है. आपको मालूम है, हर किसी को मालूम है कैसे हम फोन का मिसयूज करते हैं. हाँ हाँ, कमिन जोर से. हाँ, कैसे आपको मालूम है कि कैसे हम मिसयूज करते हैं उसका. यानी कि अदरवाइज मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत एसेंशियल चीज है. हम क्या करते हैं, मैंने कहा ये बिजनेस के लिए था. हम कहे आपस में बातें करते हैं, वो बातें जो फजूल है, जिससे टाइम ज़ाया होता है. एक्चुअली ये टाइम बचाने के लिए आया था. हम अपनी नींद भी हराम करते हैं, फजूल में बातें करते हैं. चलो छोड़ो वो, मतलब जो गलत बातें होती हैं. ऐसे भी क्या आपने क्या खाया, ये तो सीधी सी बात है, क्या खाया होगा, चाय पी होगी, खाना खाया होगा. अब क्या फोन इसके लिए करना है, ये कह रहा है. हाँ, यानी कि communication that we can do with other things as we speak, it saves time of the both speaker and listener. Actually इसका मकसद ये था कि ये सेव कर रहा था स्पीकर का टाइम और लिसनर का. मगर बदकिस्मती से हम ज़ाया करते हैं, हम मिसयूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा है. एक्चुअली इसका मेन मकसद यही था, हमारा टाइम सेव करना. अब हम चिट्ठी कहाँ लिखेंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे. हाँ, स्टेजेस ऑफ फोन कम्युनिकेशन. अब इसके स्टेजेस है, आपको मालूम है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ज़्यादा तो 2 स्टेजेस इसमें हैं. या आप रिसीवर होंगे उठाने वाले, या आप कॉल करने वाले होंगे, है ना. या आप कॉल करेंगे तो उस वक्त कॉल करने वाले, या आप रिसीवर होंगे, वही 2 स्टेजेस है. हाँ, नंबर 1 व्हेन इज रिसीवर और कॉलर. यानी कि जब आप रिसीवर होंगे या कॉलर होंगे, उसके हिसाब से इसके 2 किस्म हैं. जब आप, ये लग रहा है यहाँ गलत हुआ है, रिसीवर और रिसीव द कॉल, कॉलर नहीं, यानी कि रिसीव द कॉल. हाँ, पहले अगर आप रिसीव करेंगे, अगर आप रिसीवर होंगे, किसी ने आपको कॉल किया, आपने आप रिसीव किया है, पहले आपको क्या करना है, गिव योर इंट्रोडक्शन. व्हेन इज रिसीवर और कॉलर, नहीं ये गलत हुआ है, रिसीवर ये कॉलर है. व्हेन यू आर कॉलर है, जब आप कॉल करेंगे, जब आप कॉल करेंगे एज कॉलर होंगे, किसी को आप कॉल करेंगे, समझ आ रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, गिव योर इंट्रोडक्शन. पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है. हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं, फिर 5-6 मिनट के बाद कहते हैं, हाय ये मुझे लग रहा है रॉन्ग नंबर है, ये आप कहाँ से हो. पहले ही इंट्रोडक्शन देनी है. समझ आ रहा है, मैं कौन हूँ, आप कौन है. तो फिर हमें मतलब अपने टाइम भी ज़ाया करते हैं. तो इसका ख्याल रखना है. से द पर्पज और द एम ऑफ योर कॉल. आपको सीधी कहना है मैंने क्यों कॉल की है. हम कॉल करते हैं 1 घंटे, फिर भूल ही जाते हैं हमें क्या कहना था, है ना. यानी कि डायरेक्टली पहले जो आपको कहना है वो कहो. फिर अगर बातें भी करने होंगे, लेट अस सपोज, देन यू कैन टॉक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल से द गोल और द एम फॉर विच यू हैव कॉल्ड द पर्सन. यानी कि आपने किसके लिए उसको कॉल किया है, कम से कम वो गोल तो कहो. हाँ, और क्या, come to the topic. जैसे मैंने कहा है, what we do, we say here and there, but one should come to the topic in nurture what you had to say. और बेचारा मतलब वो भी बोर होता है. ये भी ख्याल रखना है कि जो जिसको हम फोन करते हैं, मे बी इसको और कोई काम होगी, है ना, या वो बोर मत होगा. हमें जो कहना है वो कहना डायरेक्टली. इसमें क्या है, अब हम बातें करके जाएंगे. हाँ, प्रोवाइड एलाबोरेशन ओनली व्हेन नेसेसिटी. हाँ, अगर किसी जगह जरूरत होगा, इफ यू हैव नीड टू एलाबोरेट द थिंग्स देन यू कैन एलाबोरेट, बट व्हेयर द नीड इज, जहां जरूरत होगा. अगर नहीं होगा तो क्या फायदा है.
मेन मकसद इसका है यही कि टाइम बचाना। अगर हम टाइम ही नहीं बचाएंगे फिर से उधर उधर की बातें करेंगे, उसका टाइम भी ज़ाया, हमारा टाइम भी ज़ाया। से फेयरवेल बिफोर द एंड ऑफ द कॉल, ये तो ज़रूरी सी बात है, जब हम कॉल को एंड करेंगे तो उस वक्त कम से कम फेयरवेल कहना है, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम, बाकी चीज़। व्हेन यू आर रिसीवर ऑफ द कॉल, जब आप रिसीवर आप होंगे, यानी कि आप इससे आपको किसी ने कॉल किया है, आप रिसीव करने वाले हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? से द कॉलर अबाउट हिज इंट्रोडक्शन। हम क्या करते हैं जब कोई कॉल करते हैं, हम उसको कहते हैं हाँ आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, हम 5-10 मिनट बात करते हैं, फिर कहते हैं आप कौन है, मुझे ने आपको पहचाना नहीं। क्या करते हैं हम, कैसे हम अपने टाइम को ज़ाया करते हैं? आपको मालूम नहीं 1 मिनट का कितना कीमत है, हमारे सामने कुछ नहीं है, मगर टाइम तो टाइम का जो मतलब कदर कीमत जानता है वही कुछ कर सकता है। से द टाइम, हाँ क्या कहते हैं? से द कॉलर अबाउट द इंट्रोडक्शन, इसकी पहले हमें इंट्रोडक्शन नहीं, हाँ आप कहाँ से, अगर उसने गलत है सॉरी दिस इज रॉन्ग नंबर, हम फिर कहते हैं हाँ अब तो हो गया, आप थोड़ा बात करेंगे आपस में। हाँ, स्टार्ट द कॉल इफ इट इज फॉर यू, अगर आपके लिए होगा तो तब कॉल करो स्टार्ट, अगर नहीं होगा तो काट करो, इसमें क्या है? हम कहते हैं तो कॉल तो लग गई, अब हम बात करेंगे कम से कम। हाँ, इफ नॉट देन कॉल द पर्सन टू होम द कॉल इज फॉर। कभी कभी मतलब किसी आप कंपनी में होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, वहां कॉल और किसी को करेंगे, वो फिर भी आप कहते हैं नहीं थोड़ा हम बातें करेंगे, अच्छा घर में वो ठीक है, ये ठीक है, यहाँ वो है, यहाँ ये है, क्या फायदा है? समझ आ रहा है? हाँ, लिसन केयरफुली द कॉलर। और हम क्या करते हैं, वो बेचारा कहता है हम सुनते नहीं, फिर हम कहते हैं हाँ आपने क्या कहा है, दूसरे दिन वो कहता है, तीसरे दिन वो कहता है, 10 दिन के बाद मैंने आपको कॉल की, मैंने क्या पर मुझे याद नहीं आपने क्या कहा। जब हम लिसन ही नहीं करते, मैं आपको ऑलवेज कह रहा हूं कि बी ए पॉजिटिव लिसनर, कि लिसनर तो अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, से फेयरवेल बिफोर द कॉल एंड्स द कॉल, यानी कॉलर एंड्स द कॉल, जब आप वो कॉलर अगर एंड करेगा तो कम से कम आपको फेयरवेल कहना है, कभी कभी वो नहीं कहेगा, या अगर कहेगा भी वेल एंड गुड, कम से कम आपको तो कहना ही है। समझ आ रहा है? हाँ, अब और ये मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हम तो ज़्यादा फ़ोन ही करते हैं, मुझे लगता है इतने हम डायरेक्टली बातें नहीं करते हैं जितने कि आजकल हम फ़ोन पर बातें करते हैं, है ना। तो मैंने मगर पहले ही कहा है कि सबसे ये ठीक नहीं है, सबसे अच्छा ये था कि जहाँ हमें इम्पॉर्टेंट लगेगा तो वहीं बात करनी चाहिए फ़ोन पर, क्योंकि हर किसी चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। आपने मतलब देखा होगा कि मतलब आजकल जो रेडिएशन बाकी चीज़ इसमें है, हमें नहीं लगता है, मगर मतलब यही वजह है कि हम बहुत सारी बीमारी में आजकल मतलब हम मुब्तला हो गए, ये यही वजह है। तो मतलब जहाँ लगेगा वहाँ ही यूज़ करना चाहिए। तो यानी कि अब ये क्या कह रहा है, अब क्या करना है, पॉइंट्स और टिप्स फॉर ए गुड टेलीफोन कॉल। अब चलो अब हम करते हैं, तो आप मतलब ये कुछ पॉइंट्स याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? वो कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, वो अलग बात है। वो कहेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड कॉलर, हाउ यू विल मेक द कॉल टू अनदर पर्सन, व्हिच पॉइंट्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू विल कॉल अनदर पर्सन। वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, तो जवाब यही है। क्या है? नंबर 1, आंसर द कॉल विद इन 3 रिंग्स। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम मतलब फोन पर ही होते हैं, कोई फोन करता है, हम उठाते हैं हेलो, वो कहता है आप फोन पर ही है, मैंने अभी तो किया नहीं। कम से कम अपने आपका वैल्यू तो रखो थोड़ा, अगर उठाना ही है, हमें मालूम है आप कम से कम मतलब, या कभी कभी हम उठाते नहीं, वो 5-10 रिंग्स करते हैं, फिर हम करते हैं यहाँ से लगता नहीं या और कुछ होता है, नहीं कम से कम 3 रिंग्स है। और देखो यहाँ भी 3 रिंग्स, आपको मालूम है कि हमारे मतलब ये क्या कहते हैं रिलीजन में भी लगभग हर जगह 3 है, वजू करते हैं 3, कोई भी चीज़ देखो मतलब यहाँ भी 3, हालांकि मतलब ये मतलब इस्लामिकल नहीं है, मतलब ऐसे ही। हाँ, क्या है इसके बाद, गिव योर इंट्रोडक्शन। मैंने जो आपको पहले ही कहा कि इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी, वहाँ से भी इंट्रोडक्शन। हम क्या करते हैं, बातें करते हैं घंटे 5 घंटे, तो फिर इंट्रोडक्शन, फिर कहते हैं हाँ मैं आपको जानता नहीं, फिर तो जान पहचान होती है उसी दरमियान, फिर वो नहीं छोड़ते हैं, ये नहीं छोड़ते हैं, फिर तो हाँ, इसीलिए ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान पहले ही बात में कहेगा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है, तो फिर वहीं कट जाता है। जब इंसान बातें करता है तो वहाँ तो कुछ ना कुछ ही होता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। हाँ, क्योंकि तो हमेशा शैतान होता है, इसीलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। इन दिस मॉडर्न एज, आपको मालूम है आजकल बहुत ये
स्पाइस भी होते हैं, जासूस भी होते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। वो आपका अभी देखा होगा कितने मतलब फ्रॉड्स हो गए हैं इन कॉल्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। बहुत सारी को मतलब लूटा गया भी है, दोस्ताना उनके साथ लागत कायम किया है, फिर उन्होंने मतलब उनको लूटा है, कहा है मैं आपका दोस्त हूँ, आप ये दो। कभी किसी ने लड़की बन के, किसी लड़के ने किया, किसी लड़की ने लड़का बन के किया है, किसी ने दोस्त बन के किया है, बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। इसका ख्याल रखना है। आज मॉडर्न बोल रहे हैं, आजकल ऐसे थेफ्ट नहीं होते हैं, चोर आज घर में नहीं घुसते हैं, वो ऐसे ही पैसे चुरा के लेते हैं। बाकी चीज़ आपकी आइडेंटिटी, कभी कभी वो ये भी कहते हैं अगर आप हमें नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, हम आपके फेसबुक पर आपको चलाएंगे फोटो। क्या फ़ायदा है जब आपको वीडियो कॉल आएगी किसी, क्यों उठाते हो आप, या क्यों बातें करते हो? फिर वो कहते हैं मेरे सेव रखे हैं आपकी, आपको मालूम है आज एडिटिंग भी होती है, अगर आपने एक बात की होगी तो वो दूसरे बात में कन्वर्ट कर, या थोड़ा ही पॉइंट वो कट करता है, जो मतलब पॉइंट इररिलेवेंट होगा उसी को वो फिर पेश करता है। इसीलिए बी कॉशियस, बी कॉशियस। हाँ, वही कह रहे हैं गिव योर इंट्रोडक्शन, पहली इंट्रोडक्शन वहां से यहाँ। हाँ, स्पीक क्लियरली एंड टू द पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, क्लियरली बात करनी चाहिए, ये उधर उधर यानी कि और टू द पॉइंट होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, जैसे कि वो किसी ने कहा कि दो औरतें थे, वो आपस में बातें करते थे, ऐसे नहीं करना है। जब वो आपस में बातें करते थे तो उनको वो काफ था, वो उसके टांग में था, तो वो काफ भी मर गया, तो उसने दूसरे औरत को कहा हाय इसको क्या हुआ, ये इसी वक्त मर गया, हमने तो अभी असली बात तो नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए, खासकर फोन पर। ओनली यूज स्पीकर फोन व्हेन एवर नेसेसरी, ज़्यादातर स्पीकर फोन नहीं रखना चाहिए, जब जरूरत लगेगा तो तब, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई बाहर से सुनता है ना, इसका ख्याल रखना चाहिए। और एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी नहीं सुनेगा, आप खुदा तो सुनता है। अगर कोई नहीं, गलतबाजी जो आप करते हो, आपको लगता है कोई नहीं, कौन सुनेगा? नंबर एक गार्ड सुनता है, नंबर दूसरा जो आज के क्या कहते साइबर पुलिस हैं, हम साइबर पुलिस हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। जो भी आप रात को बातें करते हैं, किसी वक्त करते हैं, वो सुनते हैं 100%। आप उनको लगता है कि हमें कौन सी मतलब किसकी बात ज़रूरत है, तो उसको वो अपने पास रखते हैं सेव। और ये भी साइंस ने प्रूव किया है, जो हम बातें यहाँ करते हैं, जो भी बात नहीं यहाँ मतलब ये करते हो, ये सेव रहती है यहाँ, ये सेव है, समझ आ रहा है? यही मतलब खुदा क़यामत के दिन जो भी हमने बात की होगी वो हमारे सामने आएंगी, हम कहेंगे हाय खुदा हमने क्यों की। उस वक्त तो हम जलील होगी, है ना। इस वक्त हमें लगता है हमें कोई नहीं सुनता है, मगर उस वक्त प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका खास ख्याल रख रहा है। हाँ, एक्टिवली एंड केयरफुली लिसन एंड टेक नोटिस, जो मैंने आपको पहले ही कहा, एक्टिवली लिसन करना चाहिए, और जो नोटिस जो वो कह रहा है उसका मतलब याद रखना चाहिए। मेक यूज ऑफ गुड एंड प्रॉपर लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, मेक यूज ऑफ गुड एंड प्रॉपर लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, उधर उधर वो गालियाँ वालियाँ नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं होता है। मैंने कहा ना, कभी कभी वो वही पॉइंट स्टार्टते हैं, फिर वही पेश करते हैं, फिर इंसान पर, या खुदा भी जब मतलब कल देखेगा आपने ऐसे आपके सामने कोई रखेगा, क्या होगा हमारा फिर, क्यों अपने आप को हम बदनाम करेंगे। हाँ, और क्या, मेक यूज ऑफ inform the person on the phone before putting someone on hold or transferring call। हम क्या करते हैं, कभी हमें दूसरे कॉल आती है, हम उसी को मतलब उसको होल्ड रखते हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम उसको कहा हाँ भाई मुझे दूसरा कोई कॉल कर रहा है, थोड़ा 1-2 मिनट के लिए मैं उससे बात करूंगा। हम ऐसे ही करते हैं, वो बेचारा परेशान होता है, शायद उसको ऐसे ही हुआ, क्या मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ, या हम कभी कभी मतलब डायरेक्टली उनको कॉन्फ्रेंस में लाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कभी कभी मतलब कोई दोस्त होगा आपको, वो आपके सामने कुछ कह रहा है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि क्या पढ़ता शाहस पक्ष गैबत, कभी कभी हम कहते हैं ये नहीं करनी चाहिए, गैबत नहीं करनी चाहिए, मगर अब क्या करेंगे, अब तो हम हैबिचुअल हो गए हैं, अब करते हैं, हम उस बंदे को फिर कॉन्फ्रेंस में लाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये शुभा नहीं दे। हम जोक के लिए, मगर कभी कभी जोक में ही फिर लड़ाई होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जोक भी कर रही है तो मतलब कम से कम उसको कहो मैं ये करूंगा, आपस में जो करेंगे, चलो लेट अस सपोज वो भी थोड़ा बात उसी तरीके से करेगा, जो कुछ भी अगर करनी होगी, प्रैक्टिस भी अगर करनी होगी। हाँ, और क्या, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वांट टू स्पीक। और एक बात याद रखनी है, ये हर हमेशा याद रखनी है, जब हम बात करते हैं फिर ये वापस नहीं आती है। हमने बात की, फिर हम क्या भी करें ये वापस नहीं आने वाली होती। क्या ला सकेंगे हम? मैंने जो बात की सेव हो गई,
یا آپ کی کانوں نہیں سنا, آپ نے سنا, آپ بھی میں کروں گا کوشش آپ سے چھیننے کی, کیا یہ واپس آئیں گی؟ اسی لیے تھنک بیفور یو اسپیک. ہر ہمیشہ پہلا سوچنا چاہیے پھر باتیں کرنی چاہیے, یہ ہر ہمیشہ کرنا چاہیے. ہاں اور کیا, ریممبر دا پرسن آن دا ادر سائڈ ہیز نو وربل cues اور gestures. ہم کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم gestures کرتے ہیں استعمال. آپ کو سمجھ میں آیا, وہ کہاں دیکھیں گا آپ ایسے کرتے ہو. مجھے کھانا ہے, اس کو کہاں سمجھ میں آئے گا آپ کو کھانا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو عادت ہے نا, وہ gestures تھوڑا دیکھے گا. سمجھ آ رہا ہے, یہ خیال رکھنا ہے. میک پراپر اینڈ سیوٹیبل ٹون آف دا وائس. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زور سے باتیں کرتے ہیں میری طرف, ہیلو. جو حمزہ لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کریں گے منا بھائی, سمجھ آ رہا ہے. تو یہاں زیادہ سلو بھی نہیں, ہلو, تو مطلب اس کا بھی خیال رکھنا ہے, ٹون کا خیال رکھنا ہے. ہاں, اسپیک کلیئرلی اینڈ کنسائزلی, جو میں نے پہلے کہا ہے, کنسائز ٹو دا پوائنٹ باتیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ادھر ادھر کی باتیں جو مین بات ہوتی ہے وہ کرتی نہیں ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. سمرائز دا کنورسیشن بیفور دا اینڈ آف دا کال. جو اب آپ کو کہنا ہے کم از کم وہ لاسٹ سے پہلے تھوڑا اس کو سمرائز کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بس. کیونکہ کبھی کبھی ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں, زیادہ باتیں کرنے میں جو مین بات ہوتی ہیں وہ اس کو یاد نہیں رہتی ہیں کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے. کم از کم جو مین بات ہو ٹو دا پوائنٹ وہ لاسٹ پر اس کی سمرائز کرنی ہے. اور ڈونٹ میک یوز آف ایموشنز آن دا فون. آپ فون پر ایموشنز دکھائیں گے, مطلب فون پر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, وہ غلط ہوتے ہیں. میں جو کہوں گا آپ کو یہ سچ ہے, مگر کیوں کی ہے. ایک بار ہم ڈیرے پر تھے, میرا ایک فرینڈ تھا, تو اس نے کسی کو فون کیا, آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو جب وہ اسے فون کیا تو اس نے اب ایکٹنگ کی ہے ایموشن. اس کو لگا ہوگا شاید رو رہا ہے, وہ ایسے کرا, سمجھا ہے. اس لیے وہ فالس ہوتے ہیں, وہ ٹرو نہیں ہوتے ہیں, وہ ایموشن ٹرو نہیں ہوتے, اس کا خیال رکھنا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور کیا, نو یور ٹائم لائن اینڈ کال اکارڈنگلی. مطلب ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم فون کرتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا ہے, ہاں مجھے لیٹ ہوا ہے, مجھے کالج جانا تھا. اب میں کیا کروں گا, اب میں کالج نہیں جاؤں گا, لیٹ ہوا, فون کر کے لیٹ ہوا, گاڑی چلی گئی, جہاز چلا گیا, آپ کیا کریں گے. ہاں خیال تو رکھنا چاہیے نا ٹائم کا. بہت ٹائم ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے, رات چلی جاتی ہے, فون کر کے جب صبح آتا ہے, او لائٹ آ گئی, آپ نے کیسے نیند کروں گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹائم اینڈ ٹائٹ ویٹرز آر نان. کیونکہ ٹائم آپ کے لیے مت روکے گا, کہیں گا وہ نہیں, اس کو فون کرنے کے لیے دو نائٹ. ہاں وہ جو صحاباز تھے ان کے لیے تو مطلب وہ تو الگ بات ہے. ہاں, ڈونٹ انٹرپٹ وین دا پرسن آن دا ادر سائڈ سیز ہز ٹاک. ہم کیا کرتے ہیں, جب بیچارہ دوسرا بات کرتے ہیں ہم اس کو بات نہیں کرنے دیتے, جلدی اس کا جواب دیتے ہیں. نہیں, اتنا بھی کم از کم میں آپ کو یہ پھر سے یہی کہہ رہا ہوں, پیشنس, بی پازیٹیو لسنر. یہ میرا عادت رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے وہ دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں, نہ ڈائریکٹلی نہ فون پر. اس کا خیال رکھنا ہے. اور ٹرائی ٹو کیپ یور فون ادھر آف اور سائلنٹ موڈ وین یو آر ان دا میٹنگ. جب بھی آپ میٹنگ میں ہوں گے, کلاس میں ہوں گے, مسجد میں ہوں گے, اس وقت سائلنٹ یا کیا کہتے ہیں سوئچ آف موڈ میں رکھنا چاہیے. مسجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں صفے میں ہوتے ہیں, وہاں سے آج آپ کو معلوم ہے آج کل کون سی رنگ ٹیونز بھی ہیں, ایسے رنگ ٹیونز جو ٹھیک نہیں. اور آپ کہیں گے کوئی سر میں رکھوں گا اسلامک رنگ ٹیون, بہت ساری نے فتوا دیا نہیں, وہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم باتھ روم جاتے ہیں, ٹوائلٹ جاتے ہیں, پھر اگر وہاں وہی آئے گا تو وہ بھی ٹھیک. کبھی مطلب انسان آپ کو معلوم ہے مطلب مختلف ہے, تو اس وقت بھی یہ ٹھیک نہیں رہتا ہے. تو اسی لیے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اکارڈنگ ٹو ایگزامینیشن پوائنٹ, خالص ایگزامینیشن پوائنٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے لائف کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں, پڑھ کے اپلائی کرنا چاہیے. مثال کے لیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, آج کل کا جو ہم مسلمان ہیں, ہم ہر کسی کو نالج ہے, انفارمیشن ہے, اور یہ حدیث شریف بھی ہے کہ آخر زمانے کے لوگ ایسے لوگ ہوں کہ ہر کسی کے گلے پر منہ میں حدیث ہوگا مگر وہ اپلائی نہیں کریں گے لائف میں.
آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو بوڑھے باپ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں، مطلب ان کو کپڑے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، ایسے ہی ہوتے تھے، مگر پھر بھی ان کو مطلب وہ مطلب کتنی میں کہوں گا وہ ماڈل تھے، اخلاق ان کے کیسے تھے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں، بسم اللہ بھی ان کو یاد نہیں تھا، لا الہ بھی یاد نہیں تھا. تو ہمیں بہت سارے آپ میں مطلب جن کو مطلب حفظ کلام اللہ ہوگا، باقی چیزوں کے مگر پریکٹیکلی میں ہم فیل ہیں. اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے. اوکے، تھینکس. Today we have completed the syllabus of the 4th semester. Thank you. Come in. Thank you.